कोणत्याही कार्यक्रमाचा प्रोटोकॉल असतो आणि या कार्यक्रम संपल्यानंतर खरं तर आता मी सगळ्यांना विनंती करते, फोटो सेशन आपण नंतर करणार आहोत. फोटो सेशन मी सगळ्यांना विनंती करते, फोटो सेशन आपण नंतर करणार. खरा प्रोटोकॉल आपण हा फोटो सेशनचा आधी ठेवला, याचं कारणच हे आहे की कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देशच हा आहे की तुमचा जो आनंद आहे त्याचा सोहळा करायचा आणि त्यामुळे आपण आधी फोटो सेशन ठेवलं. हा आपला मुख्य प्रोटोकॉल होता. मात्र आता आपल्याला पुढचा कार्यक्रम सुद्धा करायचा आहे की नाही, की घरी जायचं झालं बोल नाही ना. ह्यांचा आनंद पोटात माझ्या मागणं असंच झालंय. मी मगाशी पण सांगितलेलं की फक्त कॅमेरा टीमलाच उभं राहण्यासाठी परमिशन आहे, बाकी सगळे सर थोडंसं सर्व महाराष्ट्र लोगों को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार. सभी प्रेस ब्रदर्स को मेरा नमस्कार. गोविंदा जी, स्वप्निल जोशी जी, मेरा साष्टांग नमस्कार. And my dear patients and doctors and my staff, my sincere love to each and everyone. Today I am standing in front of you, being a Maharashtrian, coming back, standing in front of you with an aim to give some happiness, some smiles who are suffering with pain. It is a festival day for all of us. It is a festival of happiness. It is a festival of smiles. It is a festival for the patients who are not having the pain. Pain-free patients. Thank you everyone for coming here. From my bottom of my heart, my sincere love to all the patients who are sitting here. Thank you very much. For the doctors, patient smile is very important. It plays an important role in our hearts. It is a $1 million things for us for seeing the patient smiles. It was possible, it will be possible through homeopathy and through Namma Homeopathy doctors. Thank you all Namma Homeopathy doctors for this great achievements. Thank you very much. See, we will talk little about the homeopathy to understand. To the media people are also there, sirs are also there.
So I want to say something. Homeopathy depends on body, mind and soul. In other way, physical status, mental status and emotional status. For example, if any if any closed one, if you lose in your family, our emotional level will be disturbed, which will be hampered through our mental status, which results the physical symptoms, that is nothing but a disease, which is not easy, is called as disease. So the thing is, what I want to say or convey is, the thing when our emotional status will be disturbed, the complete flow down of the disease will be there. Especially for the chronic diseases, emotional disturbances and mental disturbances play an important role for the chronic cases. But in homeopathic system, we have the remedies to change the disturbances which is caused through mental illness and emotional illness too. And homeopathy is based on individuality. Everyone is different. Every person is different from one another. Our thoughts are different, our smiles are different, our likes are different, our needs are different, our reactions are different. In homeopathy, in same family, if 5 people are suffering from the fever, we will be prescribing 5 different remedies to 5 different patients, depending on their nature. This is homeopathy. We treat man in disease, not disease in man. I mean to say, we treat completely. Then coming to the Namma homeopathy, our research team doctors are continuously working for the effective formulas to treat a chronic effective cases. Right now, whatever we are seeing today is the result for our formulas. The patients who are sitting here is the reflection of that formulas. It is nothing but a immunogenic, miasmatic, 6th generation homeopathic treatment. And our doctors has done it. So I want to thank all the doctors. This is a memorable time or day I can call to see the smiles on your patients. With this formulas, so-called incurable cases like asthma, arthritis, PCODs, infertilities, psoriasis, eczema, we have done an excellent job in treating these cases. And today is the reflection which is sitting in front of you. My main vision, my team's main vision, my friends' main vision, my doctors and staff's main vision is to reach each and every dose of millions of people to give more and more effective results with minimum cost, and to give super specialty homeopathic treatment to each and every dose step. Thank you everyone for encouraging us, making us more responsibility towards the smiles of the patients. Definitely I am taking this moment to cure, to get results more and more in the future also. Thank you one and all.
आपल्या दोघांच्याही घरात असे अनेक पुरस्कार, अनेक सन्मानचिन्ह असतील. कधी आपल्या अभिनय शैलीमुळे आपल्याला असे पुरस्कार मिळालेले असतील, कधी आपल्या विशेष उपस्थितीमुळे. मात्र आज हे सन्मानचिन्ह आपल्याला मिळालंय. अनेकांच्या चेहऱ्यावर जे आनंद आहे, जे हसू आहे, त्या आनंदात आपण सहभागी झालाय. आणि आज हे फार क्वचित पाहायला मिळते की अनेकांच्या आनंदात आपण सहभागी होतो. तर हे सन्मानचिन्ह खास असेल हे मात्र निश्चित. धन्यवाद. आता मीच थोडं बोलणार आहे. आणि यानंतर काही डॉक्टर्स आणि पेशंट्स त्यांच्यामधला संवाद कसा घडतो, त्यातनं उपचार ठरतात. प्रत्येक व्यक्तीमागे वेगवेगळे उपचार पद्धती लागू केल्या जातात आणि त्यासाठी या डॉक्टरांचा आणि पेशंट्सचा रुग्णाचा संवाद फार काही आपल्याला सांगून जातो. यासाठी डॉक्टर सागर आणि मिस्टर एरंडा शहाबादी यांना मी व्यासपीठावर आणते. डॉक्टर सागर आणि श्रीमती एरंडा शहाबादी. डॉक्टर सागर आणि मिस्टर एरंडा शहाबादी. यानंतरची पुढची चेहरे बघताना त्या सगळ्या पेशंट्सच्या चेहऱ्यावरचं समाधान बघताना राहून राहून असं वाटलं की किती आयुष्य सुपर केले ना हाऊ मेनी लाईव्स हॅव दे टच्ड अँड इन द प्रोसेस हाऊ मेनी स्माइल्स हॅव दे ब्रॉट टू पीपल्स फेसेस. कारण जेव्हा एखादा माणूस बरा होतो, एखादा स्त्री पुरुष कोणी बरा होतो, तेव्हा फक्त त्या माणसाचा आजार बरा होतो, तर त्या आजाराबरोबर ते संपूर्ण कुटुंब बरं होत असतं, तो संपूर्ण परिवार बरा होत असतो, त्यांची आर्थिक परिस्थिती, सामाजिक परिस्थिती, भावनिक परिस्थिती सगळं बरं होत असतं. आणि नव्याने उभं राहण्याची, नव्याने काम करण्याची एक नवीन उमेद मिळते. आणि मला असं वाटतं की नमा होमिओपॅथीमुळे हजारो पेशंट्स तर बरे झालेच आहेत, पण हजारो कुटुंबांना तुम्ही बरं करण्याचं पुण्य तुम्हाला मिळालं आणि फार आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. आपण टेलिव्हिजनवर अनेकदा ॲडव्हर्टाईज बघतो, टेलिव्हिजनवर आपण अनेकदा ॲडव्हर्टोरियल्स बघतो, पण मला असं वाटतं की आगळा वेगळा उपक्रम आज मी इथं पाहिला, जेव्हा डॉक्टर्स स्वतः येऊन त्यांच्या पेशंटबद्दल बोलत आहेत आणि ज्या पेशंटबद्दल ते बोलत आहेत तो पेशंट त्यांच्या बाजूला उभा आहे आणि हा सूर्य आणि हा जयद्रथ असे करून नंतर तो पेशंटही आपल्या भावना व्यक्त करतो. असं फार कमी वेळा बघायला मिळतं. हे फार आनंददायी आहे, हे फार समाधानकारक आहे. आणि मला असं वाटतं की होमिओपॅथी, मी काही डॉक्टर नाही, मी काही तंत्रज्ञ नाही, त्यामुळे त्यातला मला फार मी जाणता नाही, पण मला असं माहिती की जनरली आपण लेमॅन म्हणतो, सामान्य आपण म्हणतो की होमिओपॅथीला साईड इफेक्ट्स नाही. म्हणजे फायदा किती होईल मला माहिती नाही, पण नुकसान निश्चित नाही. डिझीजचं शास्त्रोक्त डेफिनेशन काय मला माहिती नाही, पण मी एक सामान्य म्हणून नेहमी असं म्हणतो की व्हॉट इज अ डिझीज? नॉट ॲट इज. त्यामुळे ईज नाही आहे तर तुम्हाला काही ना काहीतरी आधार आहे, मग तो छोटा असेल मोठा असेल, पण नम होमिओपॅथी सारख्या संस्था जोपर्यंत आहे तोपर्यंत या सगळ्या लोकांच्या चेहऱ्यावर हे समाधान दिसत राहणार आहे. हजारो लाखो पेशंट्सच्या आयुष्याला आपण टच करणार आहात आणि हे आजार बरे करत असताना, या आजारातले लोक मुक्त होत असताना त्यांच्या चेहऱ्यावर जे समाधान येतं, त्यांचे जे पैसे वाचतात, त्यांना जी आशा मिळते, त्यांना तो एक आत्मविश्वास वाटतो, हा सगळा फार आनंद देणार आहे. मला फार मनापासून वाटतं की नमा होमिओपॅथीच्या संपूर्ण टीमचं जितकं डॉक्टर्स असतील, स्टाफ असेल, त्यांची संपूर्ण टीम असेल, कारण एक संस्था
संस्था जेव्हा उभी राहते तेव्हा तो एक माणूस एक बाई असं करून उभी नाही राहू शकत. त्याच्यामागे हजारो लोकांची पुण्याई असते, हजारो लोकांचं दिवस रात्रीचं काम असतं. आम्ही जेव्हा एक चित्रपट बनवतो तेव्हा आमच्या मागे 150, 200, 500 लोक काम करतात वर्षभर, तेव्हा तुम्ही आमचा 2 सिनेमा बघता. तसंच या संपूर्ण टीमचं खूप अभिनंदन करतो, आभार व्यक्त करतो. आणि आगळ्या वेगळ्या संध्याकाळी किंवा आगळ्या वेगळ्या या कार्यक्रमात मला आज तुम्ही बोलू लागता तुमच्या सगळ्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. या सगळ्यातनं नमा होमिओपॅथी तुम्हाला बरं करणारच आहे. आणि त्याच्यातून जर तुम्हाला थोडासा गरम लावा असेल तर सरांचे सिनेमे बघा, तुमचा उरला तुरला आजार पण दूर होईल. माझ्या मालिका टेलिव्हिजन बघा आणि आमच्यापर्यंत तुमचं मनोरंजन करण्याचं. तर मला असं वाटतं की एंटरटेन करण्यासारखं पण दुसरं मेडिकेशन नाही, स्पेशली पोस्ट कोविड काळात. कारण या मागच्या 2 वर्षात आपण ज्या सगळेच आपण समाज म्हणून ज्या काही भावनांवरून आपण सगळे गेलो, त्याच्यानंतर एंटरटेनमेंट माध्यमांचं वजन आणि त्याची किंमत वाढली आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात. त्यामुळे आम्हाला तुम्हाला एंटरटेन करण्याची संधी द्या. तुमचे शारीरिक, मानसिक आणि भावनिक आजार असतील ते नमा होमिओपॅथीमधनं बरे करा. बाकी बरं करण्यासाठी दोनण्याचा नाव. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद स्वामीजी. आज अनेक जणी इथे उपस्थित आहेत की नमा होमिओपॅथीमध्ये येण्याच्या आधी त्यांना बऱ्याच चिंता होत्या, आजाराची काळजी होती, दुखणी होती. आणि आता बघितल्यानंतर तेव्हा कशी आता अशी ना अजून ती जीवन जगते. आणि याचबरोबर आपण नव्यापासून डॉक्टरांच्या कडून एक शब्द ऐकतो, तो म्हणजे 6th जनरेशन मायाझमॅटिक इम्युनोजेनिक ट्रीटमेंट. लेमॅनला हा शब्द पाठ करायलाच मिळाला. मात्र होमिओपॅथीच्या क्षेत्रामध्ये आणि या वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये या संकल्पनेला इतकं महत्त्व आहे आणि आज नम्माने या संकल्पनेला अजून इतकं महत्त्व प्राप्त करून दिलेलं आहे की त्यामुळे अनेक जण आजारमुक्त झाले. आता मनोरंजन क्षेत्रात ही संकल्पना वापरायची असेल तर नाव फक्त एकच होतं, गोविंदाजींना विनंती करते आपण. देव सवितुलितानि परासव यद्भद्रं तन्नासु त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमयबन्धनान् मृत्युर्मोक्षमावधान. कालहर दुःखहर दारिद्र्यहर कष्टहर रोगहर हर मी हल्ली जास्त स्पीच वगैरे त्या लपड्यात पडत नाही. पॉलिटिकल वर्ल्डमधनं बाहेर पडला माणूस स्पीचच देत नाही. समजायला लागते, शब्दांची लोक अर्थ काढायला लागतात. पण त्यातनं कुठला अर्थ काय कुठून काढतील काय. मला लोक कधी कधी विचारू लागतात की तुम्ही हे वैदिक मंत्र कशाला म्हणता स्पीच देताना. की हा सर्वसामान्य माणसांना कुठपर्यंत कसा कळणार काय ते मला काय समजत नाही. पण हा फार मोठा उपचार आहे. शब्दांमध्ये, मंत्रांमध्ये, वागण्यात हा जो शब्द आहे हा त्यांनाच जास्त समजायला येतो ज्यांची तब्येत खराब असते, त्यांना उपचार हवा असतो. हे मला जास्त कळून येण्यासाठी आलं की लोक मला विचारायचे की म्हणे गोविंदा का म्हणून तू एवढं हसत असतोस ते, हा एवढं हसण्यासारखं त्याच्यात काय आहे. तर आता त्यांनी सांगितलं जगतापजी पण माझी बायको मांडी घालून बसते. हा असे जे त्रास असतात हे त्यांनाच कळून येतात ज्यांना ते त्रास झालेले असतात. लागून त्रास बघितले आणि त्या त्रासातून तुम्ही बाहेर पडले, या दोन गोष्टींमध्ये फारच खूप अंतर असतो. आणि तेव्हापर्यंत ते कळत नाही जिथपर्यंत तुम्हाला त्याचा त्रास होत नाही.
दैविक कर्म, त्यात प्रत्यक्ष दैवत मातृपित्र आहेत, गुरु आहेत. त्यानंतर कुठं काय दिसून येतं तर डॉक्टर, ते होमिओपॅथीची असो, ॲलोपॅथीची असो, कुठल्याही विभागातही असो, उपचार करणारा प्रत्येक माणूस दैवतच असतो. त्याला दैवत लाभला नसेल तर दुसऱ्याचा तो कसा काय उपचार करू शकणार? ती पुण्याई त्याच्यात असावी. ती तुमच्या सगळ्यांमध्ये ती आहे. त्यासाठी मी तुमच्या सगळ्यांचा धन्यवाद मानतो की आज या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुम्ही मला इथं बोलून या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तुम्ही मला इथं बोलून उपस्थिती द्यायला निमंत्रण दिले. फार फार धन्यवाद. कितीतरी वर्षानंतर मी मराठी म्हणतोय. कारण माझी मराठी फार गढूळ, ती विरारची. आईला गायला त्याला टरेन आली ना पिपलांची रन झाली. आमची विरारकरांची ती. आणि त्यातून त्या शिव्या बाहेर पडतात. काय गोविंदा, अशी कशी भाषा? किंवा भाषेचा तरी चांगला उपयोग करून घ्यावा. मला प्रत्येक माणसाची भाषा ती काय पुण्याकरांचीच असते का? तर मी फार धन्यवाद आपण सगळ्यांचा म्हणणार. खास करून आदरणीय आपले रघु साहेब आणि त्यांना जोडलेले हा जो डॉक्टर लोकांचा सगळ्यांचाच आपण सगळ्यांचा वर्ग, इथं आलेले सगळे जे त्रासातनं बाहेर पडलेले, दुःखातनं बाहेर पडलेले, मला ते सगळं जास्त यासाठी समजून यायला लागलं. माझी आई फार देवीसारखी साध्वी होती आणि मी फार त्रासातनं बाहेर पडलो. तर विरारला असताना पैसे जास्त नव्हते. आई फार मेहनत करावी लागायची तिला. तर साध्वी असल्यामुळे काहीतरी असंच सहज वागताना पण ती असं काहीतरी म्हणून जायची. मी विचार करायला लागायचो काय म्हणते ती. मला विश्वास नव्हता. या मंत्रांमध्ये, पूजा प्रार्थनामध्ये, दैविक क्रियांमध्ये मी सर्वसाधारण विरारकर, माझा विश्वास नव्हता. म्हणायचं हे काहीतरीच, हा साधू आला त्याला पायाला हात लावायचे, तो फकीर है उसको सम्मान, उसकी इज्जत करो. क्या मम्मी आप बहुत ज़्यादा सीधी हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें क्या है? तर एक डॉक्टर आमचे मंकेकर होते. थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, चलेगा ना? क्योंकि आप लोगों की तरफ डॉक्टर की तरफ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने साक्षात्कार कर लिया. सर्वसाधारण रूप से जीवन जीते हैं जो लोग, माता पिता, उसे भी लोग भगवान की तरह नहीं देखते. ब्रह्मा विष्णु महेश देखने लगते हैं. सच्चे तो यही है कि जो सामने आपके माँ बाप खड़े हैं वही ब्रह्मा और विष्णु और वही महेश है. तो मैं छोटा था 7 साल का. 7 साल की एज में इंजेक्शन ले लेके ये मेरे ये हाथ यहाँ से और यहाँ से और ये कमर यहाँ से और यहाँ से, शरीर में जगह ही नहीं थी, सभी नीला पड़ गया था. स्वप्निल, आप समझ रहे हैं? ये पूरा शरीर नीला पड़ गया था इंजेक्शन ले लेके. डॉक्टर जगह ढूंढ रहे थे कि और इंजेक्शन कहाँ ठोके जाए. और मेरी तोतली आवाज़ निकलती थी तभी. और मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं दूसरे लोगों की कॉपी करने लगता हूँ तो कर पाता हूँ, तो अपनी तो कर ही पाऊंगा ना. तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा. जो सर्वेंट आता था वो मुझे साइकिल पे से लेके उनके पास जाता था. तो वो कहे कि कभी नहीं आया तो मुझे चल के चलना पड़ता था. तो चल भी नहीं पाता था. और कितनी बीमारियां थी मैं अभी बता भी नहीं पाऊंगा. तो
दांत, अभी लोग हंसी पे लोग तारीफ करते हैं तो मैं सोचने लगता हूँ कि दांत, हंसा था मैं और ऐसे में झुका था तो धर 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 ऐसे सब मेरे गिर गए थे बहुत वैसे मम्मी ये एग्लो मेरी नीचे गिरी हुई थी, बाल झड़ने लग गए थे, स्किन मेरी पतली हो गई थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। रक्त के अंदर मेरे एक दोष था, हड्डी मज्जा हर जगह मुझे तकलीफ थी, मेरे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है। 7 से लेकर 13, आप सोचिए एक बच्चे के लिए ये कितनी तकलीफ की बात है। इंजेक्शन डॉक्टर साहब से मैं पूछने लगा, तब मेरी आवाज़ से मुझे पता लगा, आवाज़ मेरी नाक तक पहुंच गई। जब आवाज़ मेरी नाक तक पहुंच गई तो मैं मम्मी से कहा, मम्मी मेरा आवाज़ मेरी नाक तक पहुंच गया है, मैं बहुत कमज़ोर हो गया। मम्मी कही, बेटा तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी तकलीफ निकल जाएगी। मुझे लगा मम्मी ऐसे ही पटा रही है। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब क्या लगता है मैं जिंदा तो रहूंगा? डॉक्टर साहब कह रहे, गोविंदा, गोविंद कहते हैं, तू स्टार होगा, तेरा इतना नाम होगा दुनिया देखेगी। अब शायद उनके मुंह में उस टाइम पे सरस्वती बैठी होगी। थर्टीन की एज में एक फकीर साहब आए, मुस्लिम चाल थी तो पानी मांग रहे थे, लोग उन्हें पानी नहीं दे रहे थे क्योंकि रोजे का वक्त था। मुझे उनकी आवाज में बहुत सुरूर लगा, मैंने सोचा वाह 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 वाह, क्या फकीरी आवाज है इस आदमी की, पक्का ये भिखारी नहीं हो सकता, जरूर इसमें कुछ ऐसा इल्म है जो इनकी आवाज में तब्दील हो गया है, क्योंकि आवाज का दुख मैंने भोगा था। वो पानी मांग रहे थे, मैं खाना भी लेके साथ में पहुंच गया। उन्होंने मुझ पे दुआ पड़ी, पूरी चाल इधर उधर भाग गई, डर गए लोग, और मैं वहीं खड़ा रहा और कहा पीछे पलट के नहीं देख गोविंदा। वो वहां से गए और उसके बाद 14 साल से 21 साल तक मुझे रोज किसी न किसी रूप में कहीं साधु संत पीर फकीर मुझे ही मिला करते थे, और मेरी मम्मी मेरी सेवा हाथों से उनकी सेवा भी कराती थी, और मुझे करना भी पड़ता था जबकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं होता था। मुझे लगता था ये सब झूठ है, फरेब है, धोखा है, मेरा विश्वास नहीं था पूजा पाठ में। एक साधु महात्मा थे स्वप्निल, मुझे उनके पाँव दबाने के लिए भेज दिया मम्मी ने जंगल में। सुबह 6 बजे से पाँव दबा रहा हूँ उनके, 11 सवा 11 बज गए, साला मेरे को रोकते ही नहीं है। मैं गुस्सा खा गया, वहाँ दूध की केटली लेके गया था उनके लिए, ले केटली में एक मैंने लेके उनके खोपड़ी में मारा, खून निकल आया। तुमने मेरे सर पे इतनी जोर से मारा? देखा मैं मासूम बच्चा हूँ, सुबह से पाँव दबा रहा हूँ, तुम साधु हो गए तो मुझे रोकते भी नहीं हो, तुम कैसे आदमी हो? हंसने लग गया वो, बजाय इसके कि मुझ पर गुस्सा करे। बोला आज तेरे सारे तकलीफ निकाल दूंगा, तेरे सारे कष्ट तेरी बाधा निकाल दूंगा। मुझे लगा मेरी वाट लगाएगा यार, इसको मैंने मारा है भी। तो मैं डर के मारे मम्मी का, मम्मी उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा, मैंने मारा है साले को। तो मम्मी कही चीची तुमने बहुत गलत किया है, उन्हें माफी मांगना पाँव छू के। निर्मला तुम्हारा ये बेटा किसी पे विश्वास नहीं करता है, बहुत दुख बहुत तकलीफ देख के लोगों का विश्वास कहीं से निकल ही जाता है, इसका विश्वास निकल गया है। आज हम इसको ऐसी दवाई देंगे कि इसका मिर्गी का बीमारी निकल जाएगा। अब मैं ये आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं, इस माहौल में लोग सोचने वाले होंगे गोविंदा ये स्टोरी क्यों सुना रहा है, इसलिए सुना रहा है कि लोगों का विश्वास निकल रहा है। कोविड टाइम में लोग मंदिर मस्जिदों तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें लगता है कि बीमारी ऐसी खतरनाक होती है कि भगवान भी उसे सही नहीं कर पाएंगे।
परंतु अगर ध्यान से देखें, ये बीमारी बीमारी नहीं थी, ये एक ऐसी वेदना थी जो दी गई थी, ऐसी तकलीफ थी जो मनुष्य की तरफ से मनुष्य के प्रदान की गई थी। तो आप उसको देवता से कभी नहीं जोड़ पाएंगे। बहरहाल वो फकीर ने मुझे एक बीड़ी बना के दिया तंबाकू में। मैंने कहा ये कैसी बीमारी का इलाज है यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा। गोविंद, शरीर में ताल कहाँ कहाँ है? मैं कहा कहाँ है? अरे यहाँ ताल है, ये माथे पे जहाँ भाग्य लिखा है वहाँ ताल है, यहाँ मुंह में जो है जवान के पीछे का जो ऊपर कौवा है ना, कौवा, उसके पीछे जो जगह है उसे ताल कहते हैं। तुम्हारे हृदय में जो चल रही है वो ऐसे ही नहीं चल रही है, वो ताल है। जिस वक्त हाथ से जोड़ोगे और बजाओगे ना, तो तुम देखोगे कि जो ताली की आवाज निकलती है, ये ताली क्यों कहलाती है? ये पांव के तलवे, ये तलवे क्यों कहलाते हैं, ये तुम्हें नहीं पता चलेगा। ये सब ताल है। इस ताल में जुड़े हुए इस शरीर के अंदर मूल भाग्य से जो जुड़ा हुआ हिस्सा है, कराग्रे महासरस्वती, कर मध्य महालक्ष्मी, कर मूले गोविंदम। तुम्हारे अपने ही मूल से तुम्हारी मुलाकात तब तक नहीं होगी जिस वक्त तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। कैसे विश्वास आएगा? बीड़ी कहा कि पहले मैं फूकूंगा फिर तुम फूकना। क्या मम्मी विश्वास नहीं कीजिए इस पर? तो उन्होंने भीख फूकी और कहा कि आज से 34 साल बाद तुम्हें कोई तकलीफ होने वाली है, मैं आज उसे निकाल के जा रहा हूं। मैं कहा 34 साल बाद तकलीफ होने वाली वो आज कैसे निकालेंगे? कहा मैं गुरु हूं, मैं देख पा रहा हूं, तुम देखते नहीं हो। एक हरा बलगम का टुकड़ा तुम्हारे गले के कौवे के पीछे पड़ा है, मैं उसे निकाल दूंगा। और मैंने बीड़ी के 2 फूंक भी नहीं लगाए थे अभी कि मेरे मुंह से वो बाहर निकला। मैंने साक्षात्कार किया इस धर्म का, इस देश की आर्ट एंड कल्चर का और उससे जुड़े हुए मूल का लोग विचार भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा गहरा है, ऐसा कमाल है। इस जगह में जहां पे आज ये कार्यक्रम हो रहा है, 22 साल पहले इस रास्ते के चौक पे ये दी क्लब शुरू हुआ और ठीक 2022 में मैंने आज होम्योपैथी के इस कार्यक्रम में यह मेरी अपनी उपस्थिति थी। नेचर माए तरह तरह कई रूप में उपचार निकाल रही होती हैं, उसे देखने वाले जो होते हैं वो सदैव धन्यवाद दिया करते हैं, चाहे वो जिस रूप में आगे आ जाए, धन्यवाद दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज पहले तो ये धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ, फिर महाराष्ट्र के जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो बहुत ही फेवरेट है मुझे और मुझे बहुत अच्छे आर्टिस्ट लगते हैं, क्योंकि एक्टिंग तो बहुत लोग करते हैं पर सिनेमा जो समझते हैं उसमें स्वप्निल है। आज उनकी भी यहाँ पे उपस्थिति है और होम्योपैथी से जुड़े हुए सब जो डॉक्टर गण हैं यहाँ पे, आप सभी की उपस्थिति में दी क्लब में आज इस तारीख में, इस साल के इस महीने में इस कार्यक्रम के माध्यम से हम निकल रहे हैं, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नवा ये जो नवा होम्योपैथी है, बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे और मेरे पूरे घर परिवार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या राज जुड़ा है मैं अभी यहाँ पर इस मंच की उपस्थिति में नहीं कह पाऊंगा, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि 3, 4, 5 लोग मिलकर जो वर्ग तैयार करते हैं उनका मतलब किसी एक व्यक्ति के नाम की तरह ही हो जाता है, हम नहीं सोच पाते, परंतु ये सच है। तो लोग
वर्ग में, जगह में, समाज में, व्यक्ति विशेषों में, माता पिताओं में, हर जगह अलग अलग रूप से देखने वाले ये जो ईश्वर के जो ये रूप है, मैं सभी से प्रणाम करता हूँ। मुख से कहीं कोई ऐसा शब्द निकल आया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से इतने उपचार हो रहे हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां आप लोग निकाल पा रहे हैं। प्रत्यक्ष है आप लोग दैवत, और कहीं लफ्जों की प्रत्यक्षताओं में और शब्दों के विकार में आप लोग कतई नहीं पड़िएगा। मैं इसीलिए शुरू में 2 मंत्र कह दिया करता हूँ, विश्वानि देव सवित दुरितानि परासम यद भद्रम तन्नस्ति। मतलब कि जो शुभ है वहाँ यहाँ आए, जो अशुभता है कहीं दूर निकल जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना है। और नमो होम्योपैथी से जुड़े हुए जो आप लोगों ने उपचार किए हैं, मैं वो जो सफल हुए हैं, मैं उन सभी से यही कहूँगा, सफल है मतलब ईमानदार है, ईमानदार है इसीलिए सफल है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। रघु जी जो है ये कैसे सर्वसाधारण दिख रहे हैं डॉक्टर, परंतु बहुत आत्मिक संबंध में ये समझते हैं। और आपके साथ जुड़े हुए आपका पूरा मित्र वर्ग जितना भी है वो बहुत सुलझा हुआ भी नहीं कहूँगा मैं, जागा हुआ है। बहुत डॉक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने कभी कभी किसी के डॉक्टर के लिए दिखा है, मैं थोड़ा समझ आ रहा तो नहीं ले लो पक्का, बस भी निकलता हूँ। तो मुझे मेरे डैडी के एक मित्रगण में एक थे आदरणीय भोसले साहब, तो मुझे सब लोग टोका करते थे कि गोविंदा बहुत हंसता है। तो मैं बीमारी निकली तो मैं हंस रहा था। अब मुझे हर बात पे हंसी आए, इतनी हंसी आए कि लोग इस बात पे हंसे कि भैया गोविंदा इतनी हंसी कैसे हंस सकता है। तो बीमारी निकली है तो हंसी तो निकलेगी। तो भोसले साहब जो थे वो बहुत तकलीफ और दुख से निकले हुए थे और आर्टिस्ट थे और समझ पाते थे कि तकलीफ में क्या तकलीफ होती है। तो वो कह रहे थे गोविंदा आपल्याला जसं काय देवगड आपल्याला काय जास्त जसं मिळालं पाहिजे ना तसं आपल्याला मिळालं नाही, तर आपण स्वतः काहीतरी द्यायला पाहिजे ना, तर दॅट्स अ प्रेझेंट फ्रॉम माय साईड. तर असंच राहायचं रे, ते त्रास दिले तर ते भोगायचं नाही, त्या त्रास घ्यायचा नाही, ती तकलीफ जी ती घ्यायची नाही. काय कसं काय तो मैं कहा यार ये कैसा आदमी है. काय मस्त अगदी काय दिसतोय रे, हिरो 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 अगदी काय ए चहा 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 मिळेल का? चहा 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 काय चाय काय मजा आहे. काय 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 सांग. हा तुमचा मुलगा हा गोविंदा, हा हिरो, हा नक्की कधीतरी हा बघा तुम्ही बघा, हा हिरो टॉप हिरो. एक आर्टिस्ट ही देख पाया एक आर्टिस्ट में से क्या निकलता है. कभी सोचा नहीं था जो ऐसा बीमार रहता था, जिस वक्त लोग मुझे हीरो नंबर 1 कहते हैं मुझे विश्वास नहीं होता है, मुझे विश्वास ही नहीं होता है. मुझे आज भी मुझे किसी प्रकार की ऐसे नहीं विचार आता कि मैं स्टार हो गया हूँ या सुपरस्टार हो गया हूँ. मैं बहुत माताओं का धन्यवाद देता हूँ. मैं वो सब माताओं के प्रणाम करता हूँ जो छोटा सा बच्चा ऐसे गोद में लेके उसे इतना बड़ा आदमी बना देती है. वो कहीं प्यार कर रहा है. और उन माताओं के बाद किसी पे विश्वास रख पाए मनुष्य, किसी पे अपना जीवन अपना शरीर किसी के प्रदान करे कि भैया इसमें से संभाल लीजिए आप लोग, उसमें जो साक्षात जो है वो दैवत आप लोग हैं. प्रणाम करता हूँ. उनसे शब्द निकले हों, कहीं भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना है. लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर. आई टुक अ गुड टाइम. मुझे इतना सब याद आ गया. मेरे साथ तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं. मैं लकी हूँ कि मुझे बीमारी होके भी बीमारी होकर भी हुई नहीं. अभी थोड़े साल पहले मुझे डेंगू हुआ था, डेंगू निकल गया तो पता लगा डेंगू था. कोविड हुआ था, कोविड निकल गया तो पता लगा कोविड था. मैंने इतनी पूजा पाठ प्रार्थना सब कर ली है, कहाँ से कहीं कुछ शक्ति है जो मुझे अभी तक नहीं पता चलता है. मैं कभी
त्याला मराठीत आपण काय म्हणतो का त्यासाठी मी कधी भाव खात नाही. लव यू, थैंक यू सो मच. महाराष्ट्र की धरती के प्रणाम है. ये संत भूमि है और इस भूमि की वजह से आज जो आप लोग मुझे शिव जी की जो प्रतिमा प्रदान कर रहे हैं, मैं उसी की वजह से पूरे देश के अंदर, चाहे चित्रकूट हो, चाहे चित्रपट हो, चाहे पूरे देश के अंदर स्थापना की गई है जो शिव जी की, उसमें महाराष्ट्र सदैव पूरी दुनिया में आगे रहा है. और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ माई का कि मैं इस धरती पे मैं पैदा हुआ. लव यू ऑल, थैंक यू सो मच. कभी कभी दवा से ज्यादा दुआ की जरूरत होती है आणि खरोखर अनेकांचा आशीर्वाद आणि अनेकांचं प्रेम हे आपल्या पाठीशी आहे आणि त्यामुळे आजवरचा आपला इथला प्रवास सुकर झालेला आहे. आपणच म्हणालात आपल्या अनुभवामध्ये की असे डॉक्टर रूपी अनेक देव आपल्याला भेटत असतात आणि आपल्याला आपल्या अनेक वेगवेगळ्या त्रासांमधनं संकटामधनं मुक्त करण्यासाठी पुढे येतात. एकदा आषाढ वारीला सुरुवात झालेली आहे. विठ्ठलाची आज प्रत्येक भक्ताला आहे आणि अशा आज ही है ना, आज ही खत्म हो गए. बहुत 20 मिनट दे दिया भाई. वो इलेक्शन जब से हारा ना, उसको टेंशन है. तेरा कैमरा बोले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय रघु जी का, ख़ास तौर पे आज इस कार्यक्रम में उपस्थिति देने के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, तो बहुत धन्यवाद है. मैं ऐसी हर सेवा जो दैविक इसीलिए कहूँगा क्योंकि उस सेवा से जो निकलती हुई जो कृपा है उसमें लोगों के उपचार होते हैं और उपचार से ऐसी ऐसी तकलीफ़ों से लोग निकलते हैं. उसमें आज मैं जो कहा करता हूँ कि सफल है मतलब ईमानदार है और ईमानदार है मतलब सफल है. तो ये जो नमा होम्योपैथी है उसके वजह से बहुत सारे लोगों ने जो उपचार करवाए और वो आज स्वस्थ हुए हैं, तकलीफ़ से बाहर निकले हैं. मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे ऐसी जगह पे आज आप लोगों ने आमंत्रित किया और शुभेच्छा प्रदान करता हूँ कि आगे बहुत से लोग बहुत से कष्ट में और दुख भोगने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं, वो उस तकलीफ़ से बाहर निकले, आप लोगों के माध्यम से बाहर निकले, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ. लव यू ऑल, थैंक यू सो मच. आज नमा होमिओपॅथीच्या आनंदी रुग्णांशी तुम्ही भेट घेतली. नमा होमिओपॅथीच्या माध्यमानं जी लोकांना जी त्यांचे जे कष्ट आहेत, त्यांचे जो दुःख आहेत, त्रास आहेत, त्याच्यातून ते बाहेर पडले आणि जिथे जेवढे डॉक्टरगण इथे आलेत त्यांच्याचमुळे त्या लोकांनी सॉरी फॉर दिस ते घडू शकले. तर माझ्या शुभेच्छा प्रदान करतो, देवापायी प्रार्थना करतो की असेच चांगले सुदैव तुम्ही तुमच्यामुळे सर्वसाधारण जनतेला म्हणा की परिवारांना लाभावे, शुभेच्छा प्रदान करतो. लव यू ऑल, थैंक यू सो मच. राघु जी, आप क्या कहना चाहेंगे नमा होम्योपैथी के बारे में, और स्वप्निल और गोविंदा जी खुद यहाँ पर आए हैं, कितना कितना इम्पोर्टेंट. We are very happy to have Govinda ji and Swapnil Joshi ji here. गोविंदा जी, आप सब जानते हैं, सबको इतने साल से हंसाया है. इसके लिए भी हम स्वस्थ होते हैं. We will be disease free when we have so much of smiles, so much of happiness in our lives. And they have given us from the long years with lot of happiness and smiles indirectly through from the entertainment media, and thank you very much for that, sir. And Swapnil sir, thank you very much. So even this is the part where we can be very healthy. अभी बहुत सारे लाफिंग थेरेपीज दिस दैट दे आर कमिंग
and we are taking in that, but indirectly they have made us very, very healthy by bringing so many entertainment movies and making us laugh so many decades. And thank you very much for that, sir. स्वप्नील सर तुम्ही काय सांगाल काय फार आनंदाची आणि अभिमानाची गोष्ट आहे. एक अत्यंत आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमाचा भाग होता आला. नमा होमिओपॅथीच्या संपूर्ण टीमचं, रघु सरांचं आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि आभार. आज अनेक आनंदी पेशंट्सना भेटण्याचा योग आला. या निमित्ताने पुन्हा एकदा होमिओपॅथीची आणि डॉक्टरांची ताकद अधोरेखित झाली. या कोविडच्या काळामध्ये आपल्या सगळ्यांनाच एव्हाना प्रत्यक्षपणे अप्रत्यक्षपणे दोन्ही प्रकारे जाणवलं आहे की डॉक्टर्स म्हणजे परमेश्वराचं दुसरं रूप आहे. आणि या निमित्ताने पुन्हा एकदा ही गोष्ट अधोरेखित करता आली. नमा होमिओपॅथीच्या रघु सरांना आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमला खूप खूप शुभेच्छा, मनपूर्वक अभिनंदन आणि सर्व पेशंट्सच्या वतीने आणि समाजाच्या वतीने त्यांचे मनपूर्वक आभार की इतकी चांगली सेवा ते रुग्णांची करत आहेत. आणि ईश्वर त्यांना अजून बळ प्रदान करो, ईश्वर त्यांना अजून शक्ती प्रदान करो आणि त्यांच्या हातनं असंच लोकांचे उपचार होत राहोत आणि अधिकाधिक पेशंट्स बरे होत राहोत अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. बड़ा मुश्किल है. We all love you ना from media. It is a pleasure to see you. जब आप आते हैं सवालों में जवाबों में हंसा देते हैं. और बहुत मुश्किल होता है जब मैं गोविंदा की बात करता हूँ उन्हें कहीं लेके आना या उनको किसी ब्रांड से एसोसिएट करना. आपको क्या खास लगा कि आपने कहा कि हाँ यार मुझे इसका हिस्सा बनना है? गोविंदा आगे सर आगे आए. उपचारों की खासियत नहीं देखी जाती है. उपचार अपने आप में ही बहुत बड़ी खास पूरी दुनिया की. मुझे ऐसा लगता है कि किधर 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 नहीं किधर तू पहले के जिनके भी माध्यम से उपचार हुआ करते हैं, जैसे अब लोग कह रहे हैं कि सौंदर्य से होता है, हास्य से होता है और होम्योपैथी से हुआ करता है, तो ये जो नमा होम्योपैथी है इनके माध्यम से उपचार हो रहे हैं और इनके साथ जुड़ी हुई जो भी टीम है उन सभी के लिए ये दैवत का कार्य है. इसे आप व्यापार से नहीं जोड़ पाएंगे. इसमें मुझे लगता है कि शायद ही उतनी धनराशि भी लगती है. जो सर्वसामान्य जनता है अब किसे कैसे वो सूट होता है ये उनका विषय है, परंतु जो मैं कह पा रहा हूँ कि मेरी माताजी आदरणीय निर्मला देवी जी, उन्हें कभी भी कष्ट होता था तो वो होम्योपैथी मेडिसिन लेती थी. तो होम्योपैथी जो है वो तकलीफ़ जड़ से निकालती है, उसके लिए वो फेमस है. और मैं धन्यवाद देता हूँ हर डॉक्टर का जो तकलीफ़ों से निकालते हैं. जैसे माता पिता और गुरु जो हैं वो प्रत्यक्ष दैवत में होते हैं, तो डॉक्टर भी किसी से कम नहीं है. आखिरी सवाल, व्हाट हैपनिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट? कुछ पाइपलाइन में है, कुछ आने को है? अभी नमो होम्योपैथी के लिए आए हैं तो इन्हीं पे डिस्कस कीजिए. थैंक यू सो मच. प्रणाम. थैंक यू. हिंदी में सर हिंदी 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 नमा होम्योपैथी के लिए आज आया हूँ एंड बहुत अच्छा लगा आके. बहुत कमाल का काम हो रहा है. होम्योपैथी के माध्यम से हज़ारों लोगों को ठीक करने का काम नमा होम्योपैथी कर रही है एंड बहुत खुशी है इस बात की कि आज इस कार्यक्रम का हिस्सा में हो पाया. आदरणीय गोविंदा जी और मैं हमने कुछ पेशेंट्स की बातें सुनी, हमने कुछ पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस को फर्स्ट हैंड देखा सुना और बहुत अच्छा लगा देखकर कि नमा होम्योपैथी की टीम, रघु सर उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड दे ब्रिंगिंग अ स्माइल टू अ लॉट ऑफ फेसेस एंड वी विश देम मोर लक, आई विश देम मोर पावर एंड आई रियली विश एंड होप एंड प्रे कि उनके माध्यम से अधिकाधिक लोग उनके जीवन से वो रोग मुक्त हो जाए, पीड़ा मुक्त हो जाए एंड मे देयर स्माइल्स कम बैक, मे देयर फैमिलीज बी हेल्दी एंड मे गॉड ब्लेस देम ऑल. थैंक यू. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर कुछ पता है और सिनेमा इन दिनों काफ़ी अच्छा कर रहा है, जैसे हमने देखा कि काफ़ी रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं रीजनल सिनेमा में, तो क्या कहना चाहेंगे सर? मुझे बहुत खुशी है. जब भी मराठी सिनेमा की बात होती है मेरा सीना चौड़ा हो जाता है. आई थिंक इट्स बीन अ गुड ईयर सो फार. आने वाले टाइम में सम इंटरेस्टिंग मराठी फिल्म्स आर कमिंग. ज़रूर देखिए. मेरे आई थिंक 2 वेब सीरीज़ आएंगी और 2 फिल्म्स आएंगी, बट दिस इज़ नॉट द प्लेटफॉर्म. आज हम नमा होम्योपैथी के लिए आए हैं
एंड आप सबसे गुजारिश है कि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए. एंड गॉड ब्लेस ऑल द पेशेंट्स एंड मे एवरीबडी बी हेल्दी एंड वेल. थैंक यू वेरी मच.